Good morning, student. My name is Anuj Jain. I am from Tagore International School. Today, we will discuss about the topic is division of a fraction, class 7, mathematics. Firstly, what is the meaning of the fraction? What is fraction? The fraction which is in the form of p by q. P by q means it means when it is a numerator divided by denominator. It means that which is the fraction which is in the form of p by q, and that means the numerator divided by the denominator. So the fractions are different types of fractions. That is, the first is proper fraction, and the second is improper fraction, and the third is whole fraction. The fraction are three different types of fraction, that is called, first is the proper fraction, second is improper fraction, and the third is whole fraction. What is the meaning of the proper fraction? The proper fraction when numerator is lesser than the denominator, that is called the proper fraction. What is the proper fraction? The proper fraction is formed when numerator is lesser than the denominator, that is called the proper fraction. So, for example, proper fraction when numerator is lesser than the denominator is called proper fraction. For example, that is 5 by 6 when numerator is lesser than the denominator, मतलब कि जब numerator denominator से छोटा हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, proper fraction. Then come to the second point, that is improper fraction. Improper fraction. Improper fraction when numerator is greater than the denominator, मतलब जब numerator denominator से greater हो जाता है तब हम उसको improper fraction बोलते हैं. When numerator is greater than the denominator, that is called improper fraction. For example, that is 11 by 2 and 6 by 5, 10 by 3. These are the called improper fraction. And the last one that is important, that is whole fraction. What is the meaning of whole fraction? Whole fraction What is the meaning of whole fraction? The whole fraction, it means that when the number is whole number. What is the whole number? The whole number that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. That is the whole number. For example, अगर आप 12 लेते हैं उसके नीचे 1 ले लेते हैं तो that is called, कि अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, तो 12 is a whole fraction. कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3
3/1 लिख देते हैं, खाली 3 लिख देते हैं, उसके नीचे हमने फ्रैक्शन बना दिया अपॉन 1 लगा के। तो हम जो ये 3 बोल रहे हैं दैट इज ये क्या है, होल फ्रैक्शन है, और इस होल फ्रैक्शन को ही हम ये कहते हैं दैट इज होल फ्रैक्शन। यही कॉन्सेप्ट था आपका कि व्हाट इज द फ्रैक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन when numerator is lesser than the denominator, that is called the proper fraction. And what is an improper fraction? When the numerator is greater than the denominator, that is called the improper fraction. And the whole number is what? The number is a whole and divided by the 1, that is the fraction will be a whole, that is 12. So these are called the fraction. The concept is fraction. Next, come to the next point, that is called reciprocal. What is the meaning of reciprocal? Reciprocal of a number or of a fraction. तो reciprocal क्या रहेगा? तो reciprocal of a number, or you can say of a fraction or a fraction. पहले नंबर की बात करें तो reciprocal of a नंबर की हम बात करें या फिर किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कैसे बनेगा? तो नंबर देखो, नंबर अगर हमारे पास कोई होता है, मान लो हमारे पास 12 कोई नंबर हुआ, इसके नीचे अगर हम 1 करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, दैट इज 1/12 कर देंगे। कहने का मतलब है अगर वो p/q है, की फॉर्म में है, तो जो नीचे वाला है q उसको अपॉन में p कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर और अ फ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड 12/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/12, और t/q को क्या लिख सकते हैं q/. ये तो बना रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में मान लो 5/7 दे रखा है, ये क्या है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो हमने बताया था व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा जब न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट इज 7/5 बन गया, और ये 7/5 क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा आफ्टर रेसिप्रोकल। तो ये सारी फॉर्म बनी, दैट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर और अ फ्रैक्शन। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट में आते हैं कि एक्सरसाइज में बता देता हूँ, पेज नंबर 39 एक्सरसाइज 2C में एक बार आप देखोगे कि हम डिवीज़न किस तरीके से फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का हम कैसे कर सकते हैं, या फ्रैक्शन का हम डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। डिवीज़न का फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डिवीज़न का फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, व्हेन डिवीज़न between the two fractions, for example 5/7 divided by 7/5, okay? So when the division between the two fraction and we get the multiply the numbers, then the other fraction will be also a reciprocal. So for example अगर हमने कहा 5/7 divided by 7/5, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसके पीछे क्या करना है, इस डिवीजन को हटा के हमें मल्टीप्लाई लगाना है, और जब ये मल्टीप्लाई आप लगा दोगे तो जो इसके बाद वाला फ्रैक्शन होगा, मतलब कि ये वाला, इसका हम उल्टा कर देंगे, जैसे ये कितना हो जाएगा 5/7। तो आप देखो क्या करना है कि हमारे पास 5/7 था, इस 5/7 का अगर हम डिवीजन करेंगे तो 5/7 को इसको तो सेम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये डिवाइड हटा के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई लगाने के बाद जो बाद वाला नंबर होगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/7। तो क्या होता है, जब हम ऐसा हमें मल्टीप्लाई नजर आ जाए तो हमारे पास एक फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर करेंगे, दैट इज 5 × 5, और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, दैट इज 7 × 7, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 49। तो दिस इज द पर्पस ऑफ find out the values of 5/7 division of 7/5. So we will get the value that is 25/49. This is the answer.
Then come to the exercise 2C, question number 1. What is that? Question number is 1. क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये ए पार्ट में बोल रहा है 3/4 is divided by 5/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये फाइंड आउट करनी है, एक्सरसाइज 2C। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि 3/4 is divided by 5/7, that should be a value which will be a divisible after the removing of the division sign। तो अगर आप डिवीजन साइन को हटाना है आपको, तो 3/4 तो एज इट इज रहेगा, ये पहले वाला फ्रैक्शन। देन डिवीजन को हटा के आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 7/5। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 3 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 5, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 20। तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे कि क्या है सेकंड पार्ट में, वो है 5/12 is divided by 3/4। देन 5/12 को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, डिवाइड का साइन हटा के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये नीचे वाला जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज 4/3। अब क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4, और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 3। तो ऊपर वाले को करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 20, और इसको करेंगे तो 36। इसको ब्रेक करेंगे 2 के टेबल से, ये दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर को अगर ब्रेक करेंगे 2 के टेबल से तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 10, और ये कितना हो जाएगा 18। फिर इसको एक बार ब्रेक करेंगे तो दैट इज ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका 5/9। तो इस तरीके से दो पार्ट हो गए हैं। थर्ड पार्ट आप ट्राई करेंगे, सी पार्ट है, उसमें बोला है 1/4 है डिवाइडेड बाय 3/5, उसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है डी पार्ट एक बार कर लेते हैं। डी पार्ट में एक बार मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3/1/2 डिविजिबल बाय 5, तो इससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है 5 से। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो ये हमारे पास दे रखा है जैसे कि 3/1/2 डिवाइडेड बाय 5, और ये कौन सा पार्ट है, दैट इज डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 1 7/2। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है सबको, तो एक बार बता देता हूँ, जैसे 3/1/2 है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले इस और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 × 2, और उसमें +1 ऐड कर देते हैं, दैट इज ये। तो ये कितना हो गया 3 × 2 = 6 + 1, दैट इज 7, और 7 के नीचे जो नीचे वाला होता है हम उसको 2 बोलते हैं। अच्छा, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन होते हैं आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ये, तो इसका मतलब है कि जो 7/2 हुआ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, और डिविजिबल बाय 5, दैट्स मीन कि 7/2 हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय नीचे, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं क्योंकि ये होल फ्रैक्शन है, और होल फ्रैक्शन के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसके बाद वाला जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/5। ये कितना हो जाएगा 7/10, और यही आंसर होगा इसके डी पार्ट का। तो डी पार्ट का आंसर क्या है, दैट इज 7/10। ये डी का हो गया। देन ई पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें ई पार्ट में भी एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और एक दे रखा है फ्रैक्शन में, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करना है। देन कम टू द एफ पार्ट, जब एफ पार्ट है वो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि एफ पार्ट में क्या है। एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट है आपका 6/1/4 डिवाइडेड बाय 2/2/3। ये कुछ ऐसे डिवीजन में दे दिया। अब इसमें बोला है प्रॉपर फ्रैक्शन को, और सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, 6 × 4 = 24 + 1, दैट इज
25/4 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 + 2 8/3। अब इसको डिवाइड वाले साइन में लेकर आएंगे, दैट इज 25/4 डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 3/8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 22। बस यही आंसर होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। देन 25 3 जा 75 और 4 × 8 इज 32, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एंड क्लासीफाई देम एज अ प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर। आपको रेसिप्रोकल करना है इसका नंबर का जो भी आपको दिया गया है और उसको क्लासीफाई करना है, ये बताना है कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर होल नंबर में। तो पहली बात देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ए में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, वो आपको जस्टिफाई करना है इस वाले आंसर में। तो एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में दे रखा है कि आपको 4/5 की फॉर्म में दे दिया, तो 4/5 की फॉर्म को का रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं, रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5/4। अगर हमने रेसिप्रोकल करके इसको लिखा तो दैट इज वो 5/4 हुआ। अब ये वाली फॉर्म क्या होती है, ये कैसी फॉर्म है जहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो कहलाता है यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सारे ही पार्ट ऐसे ही हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बार आप चेक करेंगे सारे पार्ट्स का, एक बार रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद आप उसको चेक करेंगे कि वो कौन सा फंक्शन बना रहा है, फ्रैक्शन बना रहा है, दैट इज़ वो प्रॉपर बना रहा है या इम्प्रॉपर बना रहा है या फिर होल नंबर पे बना रहा है। एक बार चेक करेंगे इस वाले को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम